السلام علیکم ناظرین. جیسے کہ میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں. دلی طور پہ ایک دکھ ہوا ہے مجھے ایک چیز کا دلی طور پہ، کیونکہ میرے پاس جو آج پاکستان کی جو حالت ہے، پورے پاکستان کی، پورے ممالک کی، میڈیا کی، سوشل میڈیا کی، کرونا وائرس، بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو ہم بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے، کیسی حالات ہیں، اس حالات سے ہر بندے کو آگاہ ہے. بہت برے حالات چل رہے ہیں، آخری وقت کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. میں خود ایک چھوٹا سا ایک ملازم ہوں، غریب بندہ ہوں. بس یہ شکر الحمدللہ حلال کھا رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں، حلال بچوں کو کھلا رہا ہوں. دلی طور پہ آج مجھے دکھ ہوا جب میں نے نیٹ کا پیکیج کروایا، اور اپنے پیکیج کو جاری رکھنے کے لیے جب میں موبائل کی اسکرین کو تھوڑا اوپر کرتا رہا، عجیب سی ایک آئی ڈی آ گئی. اس میں نے دیکھا یار کیا لکھا ہوا ہے. حمیر قادری صاحب، حمیر قادری کی آئی ڈی سے شیئر کیا گیا. کیونکہ میری اتنی تعلیم نہیں ہے، سندھ کے اندر میں نے تعلیم کی ہے 11 جماعت. کیونکہ ہمارے دور میں جو تعلیم تھی، جیسے استاد آتے تھے، جیسے ہم لوگ بچپن کو دیکھتے ہیں، تو بچپن میں ہم نے تعلیم جو کیا، کیسے کیا، غربت میں کیا. کبھی کتاب نہیں تھی، کبھی کیا چیز نہیں تھی، کبھی بس حالاتوں کی مجبوری کی وجہ سے، اور اپنے اس دماغ کو ہیوی ہم تعلیم پہ زیادہ نہیں کر سکے. زیادہ تعلیم ہمیں اپنے گھر والے، اپنے بڑے نہ کروا سکے. پھر بھی میں بولا شکر الحمدللہ، جتنے ہمارے بڑوں نے محنت کی، حلال کی روزی کمائی، حلال کی روزی کھائی، اور ہمارے ساتھ ان لوگوں نے جو محنت کیا، جو جدوجہد کیا. آج اس دنیا میں ہمارا والد صاحب نہیں ہے. اللہ جل شانہ اس کو جنت نصیب عطا فرمائے. جتنے مرحوم ہیں ان کو سب کو جنت نصیب عطا فرمائے. ناظرین، میں مختصر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. دل جو میرا دکھا ہے، ایک طرف کرونا وائرس، ایک طرف غربت، پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں. جب میں گیا تو فیس بک پہ رو پڑا، آنکھیں میری بھر آئی، رو پڑا، افسوس ہوا، دکھ ہوا. سنا اس کو پورا سنا تو یار بندہ بول کیا رہا ہے. حمیر قادری کی آئی ڈی سے شیئر ہوا، یا حمیر قادری کی آئی ڈی پہ رکھا گیا. پھر عزیز اکرم لکھا ہوا تھا، عزیز اکرم صاحب، اس کی آئی ڈی پہ میں نے جب یہ چیز دیکھا تو مجھے دکھ ہوا. ایک بندے نے ہمارے پاکستان کے اندر جتنے صحافی برادری ہیں، سندھی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، اردو ہو، کسی بھی قوم سے وابستہ ہو، یار میں ان کو سلام کر رہا ہوں. کسی کی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت رہی، زرداری کی حکومت رہی تو بھی ان لوگوں نے قربانیاں دی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت رہی تب بھی ان لوگوں نے قربانیاں دی. جنرل ضیاء سے لے کر ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، میں بتا نہیں سکتا ہوں. صحابی برادریوں نے، ارے وہ نہ دیکھتے ہیں رات کو، نہ دیکھتے ہیں دن کو، آپ کے اور ہمارے لیے نکلتے ہیں خبریں دینے کے لیے، اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑتے ہیں. ارے آپ لوگوں کو کیا پتا تو ان کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں؟ ابے چینل نے تنخواہ دی یا نہیں؟ آپ لوگوں کو خبریں چاہیے. تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آج وزیر اعظم نے کیا بولا، آج صدر نے کیا بولا، آج چیف جسٹس نے کیا بولا، آج آرمی چیف نے کیا بولا. ابے شرم کر، بولنے سے پہلے شرم کر. میرا دل نہیں دکھا، یہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے جتنے صحابی برادری ہیں سب کا تو نے دل توڑا ہے، دل دکھایا ہے. ابے رائٹ ہے، قانون کو دیکھ، لا کو دیکھ، یہ جمہوریت ہے. ابے پاگل کے بچے، جمہوریت میں وزیر اعظم ہو، صدر ہو، آرمی چیف ہو، پریس والا اسے سوال کر سکتا ہے. عوام کے لیے، حکومت کے لیے، اس حالات کے لیے جو گزر گئے، اس حالات کے لیے جو ہیں، اس حالات کی وجہ سے اس حالات کا پوچھ سکتے ہیں جو آئے گا، جو ان کو نظر آتا ہے، جو عوام پبلک میں ان کو نظر آتا ہے تو آگے چل کے ایسے حالات ہو سکتے ہیں. ابے دلے، ابے بھڑوے، جو تو نے صحابیوں کے لیے بولا ہے نا، تو ڈوب کے مر.
तू भड़वा, तेरा नस्ल भड़वा, तू बेगरत, तू खानदानी बेगरत है। मैं चैलेंज करता हूं तुझे, तू खानदानी बेगरत है। अगर खानदानी बेगरत नहीं होता, दल्ला नहीं होता, तो तू ऐसे सहाबियों के लिए नहीं बोलता। अबे तूने पूरे पाकिस्तान की सहाबियों के लिए बोला है, एक सिंधी के लिए नहीं बोला है। ये सिंधी उठा, बोला, उसका दिल जला। अबे दल्ले, अगर तू सामने आ जा ना, मैं तेरा गला दबा दूं। मेरा बस हो, मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तुझ पे पिटीशन दाखिल करूं। तू भड़वा है, दल्ला है। क्यों वजीर आजम से सवाल नहीं कर सकता? क्यों जनरल से सवाल नहीं कर सकते? क्यों? जमहूरियत है, जमहूरियत में सवाल कर सकता है, अपने लिए भी कर सकता है, अपने बच्चों के लिए कर सकता है, अपने अवाम के लिए कर सकता है। अबे दल्ले भड़वे, तू कौन होता है जो सहाबियों को गाली दे रहा है? कुत्ते, कमीने, तू ला जानता है, तू कानून जानता है। अबे भड़वा, तेरा किसी बलोच से नहीं आया पाला, किसी बलोच से तेरा पाला पड़े, किसी सिंधी से पाला पड़े तो ये चीर के रखेंगे, चीर के रखेंगे। दल्ले, तू ऐसे सहाबियों के लिए बोल रहा है? हम भी छोटे सहाबी हैं। अरे हमसे पूछ, हमारे घर के हालात क्या है, अवाम के हालात क्या हैं। अबे भड़वे, ये कोरोना वायरस चल रहा है, तूने क्या दिया, तेरे हुकूमत ने क्या दिया, इस हुकूमत ने क्या दिया? लॉकडाउन बंद, हर चीज बंद। अबे गरीब कहां जाएगा दल्ला? भड़वा, तू क्या उनका दलाल है कि तुम्हारी बहन उनके कोठे पे बैठी हुई है? मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे शर्म आ रहा है, खुदा मेरा जानता है, मुझे शर्म आ रहा है। ये जो अल्फाज मैं यूज कर रहा हूं, मुझे खुद को शर्म आ रहा है। तो नहीं, मुझे नहीं बोलने चाहिए, मगर मेरा दिल जल रहा है, मेरा दिल दुख रहा है। जो तूने सिंधी सहाबियों के लिए नहीं, पंजाबी सहाबियों के लिए नहीं, इस जमहूरियत के जो सहाबी हैं, उन सहाबी हजरातों के लिए बोला है। वो दिन रात करके मेहनत करते हैं, निकलते हैं, आपको न्यूज़ देते हैं, आपके लिए उठना बैठना, बच्चों का घूमना फिरना सब छोड़ के सिर्फ हमारे अवाम के लिए। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अबे तू दल्ला उनके लिए बोल रहा है। तो इस फिलाने साहब ने ऐसे बोल दिया, फिलाने ने ऐसे बोल दिया, इस पे लानत है, इस पे लानत है, उसकी बहन कोठे पे, इसका वजीर आजम हाउस में। अबे शर्म कर, डूब के मर दल्ला, तू डूब के मर, डूब के मर। खुदा की कसम, मुझे लग रहा है तू पाकिस्तानी है ही नहीं, तू खुद कोरोना वायरस है, तू कोरोना वायरस है, तू कोरोना है, तू कोरोना है। क्योंकि तू सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने सहाबी बरादरी इस कलम को उठा के लिखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जुदोजहद करते हैं, आपके लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। अबे दल्ले, तुझे पता है सीएम हाउस के बाहर वो कितने घंटे खड़े होते हैं? अबे दल्ले, तुझे पता है वो कहीं पे खबरों के लिए जाते हैं तो कितनी उनको मिन्नतें करनी पड़ती हैं, भूख प्यास को देखकर उसको बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ इसलिए यार खबर लेनी है, यार खबर लेनी है। अबे दल्ले, एक एक दो दो माह के चैनल वाले जो तनख्वाह नहीं देते हैं, भड़वे बेगरत, तू उन लोगों के लिए बोल रहा है जिनको तू देख, उनके घरों में एसी नहीं, उनके घरों में डीप फ्रीजर नहीं, उनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं। अबे दल्ले, वो भड़वे, उनके जो बुजुर्ग बीमार होते हैं, वो भड़वे बेगरत वो सरकारी हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं अपने बड़ों को इलाज करवाने के लिए। तूने तो वो कलम उठाने वाले देखे ही नहीं है, तूने तो वो बंदे देखे ही नहीं है। बेगरत, तू वैसे ही बोलता है, सोशल मीडिया में आकर तू लड़ा रहा है लोगों को, गलत खबरें दे रहा है, गलत अफवाहें कर रहा है, और सहाबी बिरादरी को बोल रहा है जिन्होंने कुर्बानियां दी। आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान जब से बना, पाकिस्तान जब से बना, उन लोगों की कुर्बानियां हैं। मैं दोनों हाथों से उनको सलाम कर रहा हूं, उन सहाबी बिरादरियों को जो इस दुनिया फानी को छोड़ के गए हैं, जो इस फानी दुनिया में मौजूद हैं। वो अपने कलम को उठाएं, सच लिखें। वजीर आजम हो, सदर हो, आर्मी चीफ हो, किसी भी इदारे का कोई भी बंदा हो, आप उससे सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो, क्योंकि ये जमहूरियत है। जमहूरियत में इन लोगों को सवाल का जवाब देना है। हम उनको गाली नहीं दे रहे हैं, हम गाली गलूज से बात नहीं कर रहे हैं। अबे भड़वे, तू आके सोशल मीडिया पे हम साहबियों को गलत बोल रहा है। बेगरत, बेगरत का नस्ल तू होगा, तेरा खानदान होगा। और सोशल मीडिया पे आकर माफी मांग, सोशल मीडिया पे आकर माफी मांग। मेरा अल्लाह जानता है, अगर मेरे बस में हो तो सुप्रीम कोर्ट तक, ये हालात सही हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाके तुम पे मैं तेरे साथ चैलेंज करूं, तेरे इस अल्फाजों पर। तू सोशल मीडिया पे आके तू इसे बक के आ रहा है। भड़े, तुम किन के लिए बक रहा है? कंजर कहीं के, हम तुम्हारे घर से खाना खाते हैं। भड़वा, तू हमें दे के जाता है। कुत्ता, हमने तुमसे कभी कोई रिश्वत ली है? बेगरत, हम रिश्वत लेने वाले हैं। अबे भड़वा, तुमने हमको क्या दिया है? कुत्ता कहीं का, जिस चैनल पे हम काम कर रहे हैं वो हमें क्या दे रहे हैं? 2 वक्त की रोटी, एक इज्जत,
जो हमारे गले में अटकी होती है वो कार्ड, हम वो कार्ड दिखाते हैं, हम इस चैनल के सहाबी हैं, इस चैनल के रिपोर्टर हैं। भड़वा तू क्या दे रहा है बेगरत कहीं का? 4-4 5-5 माह की तनख्वाहें हमारे फंसी होती हैं चैनलों के ऊपर। चैनल वालों से जब पूछते हैं बोलते हैं मिल जाएगी। भड़वे तू हमें बोल रहा है बेगरत कहीं का, कुत्ता, कमीना, जलील। इस सोशल मीडिया पे आके पूरे पाकिस्तान की सहाबियों से माफी मांग, जिन के लिए तूने गलत बोला है आके माफी मांग, भड़वा कहीं का। वरना ये जितने हम पाकिस्तान के अंदर जितने सहाबी हैं इस कलम को उठाने वाले, कसम में उठाता हूं उस परवरदिगार का, जिस सहाबी में गैरत नहीं होगा, बेगरत होगा, वो आपके खिलाफ उठेगा नहीं। और वो बेगरत होगा जो ये बोलेगा तो इस कायम बलूच ने सच बोला, इस कलम ने सच बोला। हम सच बोलते हैं, हम सच बोलते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक में हमारी हयाती है, हम सच बोलेंगे, सच लिखेंगे और सवाल करेंगे। जो हो रहा है, जो हुआ, जो होने वाला है, हम सवाल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आला हो, चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, हमारा हक है, हमारा राइट है, हम उससे सवाल पूछेंगे। क्योंकि हमारे घर का सवाल नहीं, ये अवाम का सवाल है, अवाम का जज्बा है। जो हम रोडों पे निकलते हैं, जो हम रोडों पे जाते हैं, जो गलियों में हम घूमते हैं, जो हम गोठों में घूमते हैं, जो गोठों की हालत है उसको हम देख कर बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर मेरी ये बात अच्छी लगी, खुदारा जिस खुदा ने आपको पैदा किया है पंतन पाक के सदके, मेरी इस वीडियो को शेयर करो, सोशल मीडिया पे इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, जिस उस दल्ले को पता लग जाए, उस दल्ले, उस कमीने को पता लग जाए तो मैंने मीडिया के खिलाफ बोला, मीडिया वालों के खिलाफ बोला, उस सहाबी बिरादरी के खिलाफ बोला, जो घरों पे, जो मैं बोलता हूँ उस जगह पे जाते हैं रिपोर्ट लेने के लिए जहां पे उनकी जान का खतरा होता है, उनके खिलाफ बोला, सबकी दिल आज़ारी की है। इस भड़वे को आके सोशल मीडिया पे माफी मांगना चाहिए, वरना हुकूमत पाकिस्तान से मेरी ये रिपोर्ट है, इस भड़वे, इस दल्ले पर जिसका मैंने नाम लिया, हुमैर कादरी, उसके नीचे जो आईडी पे जिसका नाम लिखा हुआ था अजीम अकरम, उसकी आईडी पे मैंने जिस बंदे को देखा बक रहा है, कुत्ते की तरह बक रहा है। उस भड़वे बेगरत के ऊपर कानूनी एक्शन लिया जाए। ये जमहूरियत है। हम जैसे कोरोना वायरस से लड़ेंगे, इस भड़वे से भी लड़ेंगे। हमें जज्बा है, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पंतन पाक के सदके रब हमारी मदद करेगा। हमने कलमा भरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भड़वे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हालात सही हो। कमीने, कुत्ते, आके माफी मांग हमारे सहाबी बिरादरियों के लिए जो तुमने बोला है। माफ करो नाजरीन, जितना मैं बोल गया हूं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और खुदा की कसम मेरे जज्बात ना रुक सके। मैं कोई ये वीडियो बनाने की मुझे कोई शौक नहीं थी। मेरे जो जज्बात थे अंदर के दिल के अंदर, जो मैंने सोचा मेरे सहाबी बिरादरियों के लिए इसने बोला है, वो मैंने दिल की जो एक बोलते हैं ना एक जलन सी होती है, वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। खुदा मेरा जानता है, सिर्फ ये दिल की आवाज़ मैंने शेयर की है कि यार ऐसे सोशल मीडिया पे आके नहीं बोलो। हमारी पाकिस्तान की हुकूमत है, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम आप लोगों के साथ ये कलम उठा के दिन रात निकलते हैं, मेहनत करते हैं, जज्बात करते हैं, रोडों में सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। कभी हम डंडे खाते हैं, कभी हम गोलियां खाते हैं, मगर हम सच लिखते हैं। अगर हमारी हालात देखोगे सहाबियों की, तो हमारी सहाबी बिरादरियों की जो हालात है वो हमारा रब जानता है। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो जो पूछते हैं आवाम के लिए पूछते हैं। एक तरफ से रब इम्तिहान ले रहा है कोरोना वायरस देकर। मेरी यही होगी अल्लाह जल शानू के आगे, अल्लाह जल शानू इस कोरोना वायरस को पाकिस्तान से ख़त्म कर। हम गरीब लोग हैं, हमें वसीयत नहीं है कोरोना वायरस के साथ हम मुंह दे सके। इटली जैसा शहर वो नहीं दे सका, वो ममालिक जो सुपर पावर हैं वो नहीं दे सके। हम तो पाकिस्तानी लोग हैं, बहुत ही गरीब है। और हमारे हुक्मरानों के हालात, हमारे हुक्मरान आपके आगे। या अल्लाह हमें माफ़ कर, अपने महबूब के सदके माफ़ कर, आमीन।